आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओहम्स लॉ हम आज पढ़ेंगे। ओहम्स लॉ क्या है, कंडीशंस क्या है, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ कांस्टेंट होता है, ओहम्स लॉ स्केलर फॉर्म में क्या है, वेक्टर फॉर्म में क्या है। आज हम इस लेक्चर में ये पैरामीटर्स स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जाएंगे। ओहम्स लॉ in 10th standard you already studied, right? And the equation of resistance also studied, but just we revise it. What is Ohm's law, what is the equation of resistance, and which parameters are dependent for resistance conditions, Ohm's law conditions, right? Listen, Ohms state that all physical condition of conductor remains constant, then potential difference applied between two ends of conductor, at that time current flowing through the conductor and potential difference between two ends of conductor are proportional to each other. Means number of books V upon I is equal to constant, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा है, right? Means the ratio of potential difference to the current is constant. V proportional to I or V is equal to IR, R is equal to V upon I is equal to constant. In Ohm's law, one of the statement is most important. All physical conditions of conductor remains constant. Remains constant. Physical condition means what? Temperature, pressure, length, area, humidity. These conditions are remains constant. It means these conditions are changed, then Ohm's law is not obeyed. Means the conductor change its physical conditions, all physical conditions, conductor conditions. At that time, the Ohm's law is not obeyed by that conductor. Ohm's law is not obeyed means what? The ratio of V upon I is not constant, or V is not proportional to I. Means those conductors are obey Ohm's law, those conductors are called as a ohmic conductor, and those are not obey Ohm's law, they are called as a non-ohmic conductor. जो Ohm's law को फॉलो करेंगे उस कंडक्टर को हम ओहमिक कंडक्टर बताएंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे उसे हम नॉन ओहमिक कंडक्टर ऐसे बताएंगे। आप देख सकते हैं, you see in this figure, one of the conductor, potential difference V is applied, current flowing through the conductor, right? Then V proportional to I, then constant of proportionality is R, that is resistance of the conductor. Resistance of the conductor R is equal to V upon I is equal to constant. V proportional to I, right? We draw the graph current voltage, current versus voltage, voltage versus current, and we observe that suppose this is one of the linear straight line passing through the origin, then we take the slope of any graph, at that time reading on y-axis upon reading on x-axis, then we get delta upon delta V upon delta I, which is equal to constant. Means this graph gives the resistance of the conductor, resistance of the conductor, and slope exactly equal to opposite side upon adjacent side, means tan theta, slope is equal to tan theta, also is equal to constant. In 10th standard we discuss about the equation of resistance, that is ohm. Unit of resistance is ohm. Resistance R, unit is ohm, right?
Reciprocal of resistance is called conductance. Is called conductance. We discuss the concept of resistance in next lecture. All parameters about the resistance we discuss in the next lecture. What is resistance exactly? Combination of resistance and so on. रेजिस्टेंस के बारे में जो भी पैरामीटर्स है, जो भी कंसेप्चुअल पैरामीटर्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं. यहाँ पर आप एक इक्वेशन जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही हम देखेंगे. आर रेजिस्टेंस यूनिट इज ओहम. कंडक्टेंस is a reciprocal of resistance, that is conductor. Unit or symbol, that is symbol per ohm. The symbol of ohm is this, in this way. It is also or Siemens. अगर इस सिंबल को आप देखें, if you see this symbol is like a speed breaker. Is like a speed breaker. देख सकते हैं, ऐसा आप जाएंगे फिर स्पीड ब्रेकर आएगा, राइट? ऐसे जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर मीन्स यू जस्ट लिसन. आर रेजिस्टेंस इज ऑन मीन्स टू जस्ट oppose the flow of electric current, because R and I both are inversely proportional to each other. स्पीड ब्रेकर इलेक्ट्रॉन के स्पीड को ब्रेक लगाता है, अपोज करता है, अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को अपोज करता है, तो उसे ही स्पीड ब्रेकर कहा जाएगा. मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू द अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करेगी. तो ये इक्वेशन, ये वो सिंबल भी वैसे ही बताता है स्पीड ब्रेकर, राइट? रेजिस्टेंस जनरेट, देन इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व, लिसन, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज resistance of the conductor is proportional to length and inversely proportional to area, right? Resistance of the conductor is proportional to length and inversely proportional to area. Then constant of proportionality is a resistivity, that is rho. Therefore rho is equal to Ra upon L, that is ohm meter square upon meter. Then meter 1 cancel, the unit of rho is ohm meter. Resistance of unit of resistivity is ohm meter. Unit of resistance is ohm. Unit of resistivity is ohm meter. सबको समझ में आ रहा है? देखिए ये कंडक्टर है, इसे हम ऐसा खींचते हैं. सपोज यू स्ट्रेच इट, ऐसा खींचेंगे, इसको ऐसा खींचेंगे तो क्या बढ़ेगी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. और ये जो कंडक्टर है वो थीन होता जाएगा, मतलब उसकी थिकनेस कम होती जाएगी. ऐसा थिकनेस कम होगी मतलब एरिया कम होगा, लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा. तो लेंथ अगर बढ़ती है तो अपोजिशन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को. इसका मतलब लेंथ इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बट एरिया डिक्रीजेस. मीन्स लेंथ एंड एरिया बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. लेंथ एंड एरिया बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर को प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द कंडक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो लेंगे, रेजिस्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड देन रो इज इक्वल टू Ra अपॉन L. एंड टू कैलकुलेट द unit of resistivity according to formula, we got the unit is ohm meter.
यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट? ओहम मीटर, राइट? यहां तक हम रुक सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप अब ये सोच सकते हैं कि ओहम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम ओहम्स लॉ यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो स्लोप निकाल के रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। आगे जाके हमें यह डिस्कस करना है कि हमेशा ही रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है क्या? If for every conductor resistance is constant, तो आंसर आएगा नो। Resistance of the conductor is constant whenever all physical conditions of the conductor is constant, first thing, and in the conductor the potential difference is proportional to I. एक बात ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कोई गुड कंडक्टर्स हैं और अगर कोई वायर करंट कंडक्ट करती है, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, एट दैट टाइम सर्टेन हीटिंग इफेक्ट इज जनरेटेड, एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज चेंज। हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा बताएंगे यहां पर कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। कई बार कैसे होता है, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, राइट? अप टू सर्टेन प्लेस द फिनोमिना V proportional to I is obey, no doubt. Graph is linear, but after certain time the heating effect is generated, then graph means the conductor does not follow the Ohm's law. मीन्स यहां तक ओम्स लॉ ओबे हुआ, यहां से थोड़ा ग्राफ जो है लीनियर से फ्लक्चुएट हो गया, तो यहां से हम क्या बताएंगे कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी, वहां पर जो रेजिस्टेंस के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी V प्रोपोर्शनल टू I, वो चेंज हो गई। मतलब यहां से ऐसा हो गया कि V प्रोपोर्शनल टू I नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम आगे सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रैक्टिकल भी करते होंगे स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट, मीन्स द ओहम्स लॉ कैनॉट बी फॉलोड बाय दोज कंडक्टर्स, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, thermistor, junction diode, vacuum tube are not follow the Ohm's law, means they are non-ohmic conductor. Understand? Ohm's law को follow नहीं कर पाते। जंक्शन डायोड अभी बताएंगे, जंक्शन डायोड जैसे यहां पर आप IV कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वोल्टेज अप्लाइड टू द कंडक्टर, देन व्हाट हैपन? When voltage is given up to certain voltage, the current is not increases. After certain times, current is increases. After certain voltage, current is increases. Why this phenomena is happen? हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जंक्शन डायोड ऐसे बिहेव कर रहा है कि एक सर्टन वोल्टेज तक करंट इंक्रीज नहीं होता है, मीन्स V नॉट प्रोपोर्शनल टू I. V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I. और यहां पर ये जो करंट है मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है, फॉरवर्ड बायस करंट बोलते हैं, और फॉरवर्ड बायस जंक्शन बोलेंगे। यहां पर जो करंट है यहां पर भी ऐसे ही होगा कि अप टू सर्टेन वोल्टेज करंट इज, बट ये करंट रिवर्स बायस में आएगा तो ये माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। रिवर्स बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन। तो आप देख सकते हैं यहां पर, यू सी दैट V is not proportional to I, means that is non-ohmic conductor, semiconductor, forward bias and reverse bias junction diode, right? Forward bias and reverse bias, forward bias and reverse bias, measure in milliampere, measure in microampere. Gaseous में तो resistance of the conductor negative होता है,
यहां पर जैसे करंट और वोल्टेज, इन फर्स्ट सर्टन प्लेसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजेस, ऐसी कंडीशन आ जाती है। लीनियर ग्राफ नहीं है, लेकिन निगेटिव भी आया था, यहां पीक वैल्यू तक आ गया, वोल्टेज करंट डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो निगेटिव रेजिस्टेंस आ गया, राइट, अंडरस्टैंड, ऐसा ही बता सकते हैं। निगेटिव आया रेजिस्टेंस, आर इज निगेटिव फॉर गैसियस कंडीशंस, मीन्स रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल कंडक्टर्स। कंडक्टर है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, कहाँ निगेटिव हो रहा है, कहीं पर कांस्टेंट नहीं रहा है, लीनियर ग्राफ नहीं दिखा रहा है, राइट। कई जगह आप ऐसा भी ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लीनियर नहीं होगा, ऐसे, ऐसे हो सकता है। जैसा बिहेवियर आप करंट और वोल्टेज में, करंट और वोल्टेज का बिहेवियर कंडक्टर में जैसे होगा, उसी तरह से रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, राइट, अंडरस्टैंड। देन वी स्टडीड नेक्स्ट टॉपिक, that is Ohm's law in scalar form. This is the physical origin of Ohm's law. These conditions, these equations we already discussed in the last lectures. If you see Resham Classes YouTube channel, then you got this total formula in details, relation between concept of drift velocity, relation between electric field and drift velocity, relation between current and drift velocity, current density, ये तीनों लेक्चर्स में आपको ये फिनोमिना मिल जाएंगे। लेकिन तो भी आपको हम बता देते हैं कि ओम्स लॉ स्केलर फॉर्म में अगर बताते हैं तो उसी को ही हम फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ ऐसे बताएंगे, ऐसा पढ़ेंगे। मतलब ओम्स लॉ कैसे प्रूव होता है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ ही बता सकते हैं। ओरिजिन क्या है ओम्स लॉ का, हमने ये इक्वेशंस डिराइव भी किया है। देखो, हम सबको पता है, जैसे कोई कंडक्टर है, वन ऑफ द कंडक्टर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन with all possible velocities, and the average speed of the electrons randomly due to thermal energy we can calculate with the help of formula V is equal to under root of 3 kT by m. We got the velocity up to the order of 10 raised to 5 meter per second due to the thermal energy, and the average velocity of the electron is 0. Average velocity of the electron is 0. There is no net flow of charge, there is no collisions with each other, not getting a velocity of for the net flow of charge. That's why electron does not constitute the current in the absence of electric field. When you apply the electric field, at that time what happened, electrons got the electric force, then electrons gained the velocity in a large manner, means velocity gained by the electron is very large, but due to the collision electron velocity decreases, again increase, again in this way the electron got the net flow of charge, and due to the net flow of charge the velocity gained by the electron, that is called drift velocity, and due to the drift velocity current is flowing through the conductor. In this way current is generated due to the application of electric field to the conductor. अंडरस्टैंड, ऐसे होता है, वही फॉर्मूले हमने पढ़े। तो वहां पर I इज इक्वल टू NEAVD हमने इक्वेशन निकाला है, इक्वेशन ऑफ ड्यूट वेलोसिटी E टाउ अपॉन m, इक्वेशन यहां पर पुट किया, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर E टाउ अपॉन E की वैल्यू V अपॉन L, देयरफॉर V अपॉन L, देयरफॉर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके V अपॉन I का इक्वेशन क्या आया, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो V अपॉन I इज कांस्टेंट, पर कब, ये जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट होने चाहिए। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। कब? टेम्परेचर बढ़ेगा तब। टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। मीन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो कोलिजन भी बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। What is realization time? Tau. That is the collision between two collision, time interval between two successive collision. Understand? देखो, number of electrons per unit volume बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, कोलिजन बढ़ेगा। मतलब कोलिजन जो दो सक्सेसिव इंटरवल में रिलैक्स होने का जो टाइम था वो कम हो जाएगा, तो टाउ डिक्रीज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ ऑफ कंडक्टर एक्सपांड हो सकती है। मतलब टेम्परेचर ये फैक्टर इतना इंपैक्ट कर रहा है कि ये टोटल पैरामीटर्स ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ अगर कांस्टेंट रखना है, तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए ये टोटल पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट होता है तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। तो इसी को ही हम स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बताते हैं, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ ऐसे भी बताते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सबको कि यहां पर V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट? तो ये जो फिजिकल पैरामीटर्स जो भी पैरामीटर लेंथ है, एरिया है, वो जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, टाउ वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पैरामीटर्स चेंज होने नहीं चाहिए, तभी यहां पर हम V प्रोपोर्शनल टू I बोल सकते हैं, और उसी को ही हम फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ या स्केलर फॉर्म में बता सकते हैं। अंडरस्टैंड? थैंक यू। आगे देखें वेक्टर्स में क्या होता है। वेक्टर लॉ क्या है? इजी है। जैसे हमने बताया था कि हम पोटेंशियल पढ़ते हैं, लेकिन पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में अगर बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे, राइट? जैसे पोटेंशियल हमें मालूम है, पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंट्स इन वेक्टर फॉर्म, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूज। हमने ये भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, अगर करंट है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन हम वहां पर वेक्टर नहीं बोल सकते, तो उसको वेक्टर में डिफाइन करने के लिए हमने करंट डेंसिटी का कंसेप्ट लिया, वेक्टर जी। तो वही कंसेप्ट लेके हम आगे जाएंगे, राइट? तो देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो हमने R का इक्वेशन पढ़ा है, रो एल अपॉन ए। R की वैल्यू रो एल अपॉन ए न्यूमरेटर में चला गया, तो यहां पर I इज इक्वल टू V अपॉन रो एल। I अपॉन ए we define the current flowing through the conductor per unit area, it is called current density. V upon L is equal to E according to the relation between electric potential and electric intensity, electric field. Therefore V upon L is equal to E, and we know that reciprocal of resistivity is called conductivity and reciprocal of conductivity is called resistivity. ये हमें पता है। Rho is equal to 1 upon sigma resistivity conductivity, and sigma is equal to 1 upon rho, the unit of conductivity per ohm per meter, per ohm per meter। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ ऐसे लिखेंगे, 1 upon rho means sigma, vector J is equal to sigma into vector E, that is a vector form of Ohm's law।